Hello students, after cell wall I will start plasma membrane. So, in every kind of animal cell you can see cell membrane, which is the outermost layer of the cell in case of animal cell. But in case of plant cell it occurs just below cell wall. तो cell wall के just नीचे की जो layer होती है is known as plasma membrane. It is extremely thin and delicate layer which is living in nature. So write some points. In case of animal cells, plasma membrane is the outermost layer. It is extremely thin and delicate. It is also known as plasma lemma. Cell membrane or plasma membrane. In case of plant cells, it occurs just below cell का जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. तो इन प्लांट सेल्स इट अकर्स जस्ट बिलो सेल. Plasma membrane is a tri-layered structure just like सैंडविच. होता क्या है इसमें कि जैसे सैंडविच में हम लोग 2 ब्रेड रखते हैं और बीच में उसकी फिलिंग रहती है, बिल्कुल उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिट मेम्ब्रेन होता है जिसमें लिपिड की 2 लेयर होती है और बीच में पाया जाता है प्रोटीन. तो इट इज जस्ट लाइक सैंडविच. इट इज अ लिपिड bilayer protein structure. At molecular level, अगर molecular level पर देखें तो it is made up of phospholipids और cholesterol और protein molecules are embedded in it. या कभी-कभी क्या होता है कि लिपिड की जो लेयर होती है उसके आउटर सरफेस पर भी क्या कभी-कभी पाए जाते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर एडहेरेंट टू द कार्बोहाइड्रेट्स. तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो दे फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स एंड समटाइम्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर adherent to the carbohydrates molecules and for glycoprotein. If lipid molecules are added with carbohydrates or they are attached with some carbohydrate molecules, then they are known as glycolipids. And when the protein molecules are attached to some carbohydrate
it is known as glycoprotein. Now come to the function. It is a living layer which is selectively permeable in nature. Selectively permeable in nature का मतलब होता है कि it selectively permits the entrance and exit of certain solutes, solvents or molecules. It is a selectively permeable membrane, so it controls the entrance and exit of the certain molecules. So it is selectively permeable in nature, और चूंकि ये selectively permeable होती है, सभी molecules नहीं अंदर आ सकते हैं या नहीं बाहर जा सकते हैं सेल के, इस वजह से the cell maintains a constant internal environment. Due to this nature, it maintains a constant internal environment. तो एक constant internal environment मेंटेन हो जाता है, which is known as होम्योस्टैसिस. तो होम्योस्टैसिस की कंडीशन क्या होती है? मेंटेन हो जाती है. Now we will discuss some other functions also. Like transport of small molecules, for example water, oxygen, carbon dioxide, ethanol, certain ions and glucose, etc. So they are transported through the semi-permeable membrane by the process of diffusion, osmosis or sometimes active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है. अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए some special types of proteins are found on the cell membrane. इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, या फिर आप इसे हम लोग पंप्स भी कहते हैं. एंड थ्रू दीज पंप्स और दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. यहाँ पर एटीपी कंज्यूम होता है, एनर्जी खर्च होती है. इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. उसके अलावा अगर बल्क में ट्रांसपोर्ट होना है, तो बल्क में ट्रांसपोर्ट होने के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे. एंडोसाइटोसिस, जिसमें पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस आता है, और
Now, इसके अलावा वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी etc. they all have plasma membrane as their structure, so they are also semi-permeable in nature. Now, the activity of plasma membrane, is determined by the proportion of lipid and protein molecule. लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो प्रपोर्शन होता है वो डिसाइड करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना एक्टिव होगा। अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं, उनका रेशियो ज़्यादा पाया जा रहा है, सो इन दैट कंडीशन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी मोर एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो लिपिड बाइलेयर प्रोटीन की जो लेयर पाई जाती है उसमें प्रोटीन का प्रपोर्शन ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है एज कंपेयर टू दोज मेम्ब्रेन्स विच आर प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स की जो माइलिन शीट होती है इन केस ऑफ एनिमल्स, वहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड का रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी वजह से वहाँ की जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी लेस एक्टिव होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।